हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स क्लास। आज हम इस चैप्टर का जो मेन कॉन्सेप्ट है यानी कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। बट बिफोर दैट we'll recapitulate a little. Now in the previous class, what all did we learn? Firstly, I told you about the different types of triangles that I don't have to repeat it again, you already know it. And then I told you certain important terms which you require for the further exercises. And let's recapitulate about that a little. Now here, the first one that I taught was median. Median. What was a median? A median is a line segment from the vertex of the triangle to the midpoint of the opposite side. If this is the midpoint, then the line segment from the vertex to this midpoint is called the median. यानी कि हिंदी में उसे हम क्या कहेंगे? माध्यका। एक रेखाखंड जो त्रिभुज के शीर्ष से उसके विपरीत भुजा के मध्य बिंदु को छुए उसे माध्यका कहते हैं. And how many medians are there in a triangle? There are 3 medians. And the point of concurrence where all these 3 medians meet is called centroid, यानी केंद्रक. यानी यहाँ पर जो मीडियन होगा यहाँ से भी जहाँ पे मिलेगा उसे हम कहेंगे केंद्रक. अगला देखिए, the second one is altitude. What is an altitude? An altitude is a line segment from the vertex of a triangle perpendicular to the opposite side. Yani from here straight it makes 90 degree with the opposite side. ठीक है? Altitude को हिंदी में क्या कहते हैं? शीर्ष लंब. तो जो रेखाखंड एक त्रिभुज के शीर्ष से उसके विपरीत भुजा पर लंब होगा उसे हम शीर्ष लंब कहते हैं. और जिस बिंदु पर तीनों शीर्ष लंब मिलेंगे उस बिंदु को हम कहते हैं लंब केंद्र, और we call it in English as orthocenter. So this point of concurrence of the altitudes is called the orthocenter. Come to the next one, that is angle bisector. What is an angle bisector? What did we learn? A line segment that bisect the angle is called the angle bisector या कोण समद्विभाजक. और जिस बिंदु पर एंगल बाइसेक्टर्स मीट करते हैं उस बिंदु को हम कहते हैं इन सेंटर या अंत केंद्र. ठीक है बच्चों? नाउ कम टू द लास्ट वन, perpendicular bisector. What is a perpendicular bisector? A line segment that bisects a given line and is also perpendicular to that line is called perpendicular bisector. और हिंदी में हम उसे कहेंगे लंब समद्विभाजक. तो from here it might come this way maybe. ऐसा straight एक line हो सकता है. It will bisect both the sides as well as it will be 90 degree also. ठीक है? And यहाँ से अगर हम बनाते हैं they will go and meet somewhere or the other, isn't it? So the point of concurrence of the 3 perpendicular bisectors is called circumcenter या हिंदी में हम उसे कहेंगे परिकेंद्र. So these were few important points that I taught you. Other than that, I taught you about congruence. What is congruence? सर्वांग समता किसे कहते हैं? 2 figures are said to be congruent if they have the same shape and same size. यानी if there are 2 figures and if they coincide exactly, संपाती हैं, तब हम कह सकते हैं कि दोनों आकृति जो है आपस में सर्वांगसम है. ठीक है? And then we learned about the congruence of different figures, है ना? तो the first one, 2 circles are said to be congruent if they have the same radius. अगर उनका सेम त्रिज्या हो तो हम कह सकते हैं कि दोनों सर्कल्स, दोनों वृत्त आपस में सर्वांगसम है. 2 line segments are said to be congruent if they have the same length. 2 angles are said to be congruent if they have the same measure. Then 2 squares are said to be congruent if they have the same side length. अगर उनके भुजाएं बराबर हो तो हम कह सकते हैं कि 2 वर्ग आपस में सर्वांगसम है. नेक्स्ट, आयत. 2 आयत कब होगा आपस में सर्वांगसम? अगर उनकी लंबाई और चौड़ाई माने लेंथ एंड ब्रेथ
are equal to each other, then we can say that the two rectangles are congruent to each other. And then finally we came to triangles. What was about the congruence of two triangles? We know that there are 6 parts in a triangle, that is the 3 sides and the 3 angles, isn't it? So if the 6 parts of this triangle is equal to the 6 parts of this triangle, then we can say that the two triangles are congruent to each other. उसके अलावा हमने और क्या सीखा? We learnt about the symbol of congruence. This was a symbol of congruence, right? Other than that हमने क्या सीखा? How to write the symbolic form of two congruent triangles. मैं उसे और एक बार आपको यहाँ बता दूंगी क्योंकि it's really important. यहाँ पर Now this is your triangle ABC and this is your triangle XYZ. ठीक है? मान लेते हैं side AB is equal to YZ. ठीक है? Side BC is equal to XZ. और हम कहेंगे कि this angle B is equal to angle Z. So here, now the two triangles, ठीक है, ये साइड और ये साइड भी आपस में इक्वल है, ठीक है, और हमें कह दिया गया है कि both the triangles are congruent to each other. तो अब हम इसका सिंबॉलिक फॉर्म कैसे लिखेंगे? पहला वाला आप लिख लीजिए, इट इज ट्रायंगल ABC. ओके, ट्रायंगल ABC. अब हम ढूंढेंगे कि यहां पर कौन सा पार्ट है, ठीक है. अब द फर्स्ट वन इज AB, दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट, है ना. तो यहां पे सबसे पहले या तो YZ आएगा या फिर ZY आएगा, ठीक है. दैट पार्ट इज क्लियर. नाउ आफ्टर दैट आई हैव टेकन BC इज हियर, दिस पार्ट, यानी कि इट इज दिस पार्ट, राइट. तो पहले मैंने ये पार्ट लिया जिसमें एक डंडी है, फिर मैंने ये पार्ट लिया जिसमें 2 डंडी है, इसलिए हमें आया ABC. उसी तरह यहाँ पर भी पहले एक डंडी वाला ये है YZ और 2 डंडी वाला ये है यानी कि ZX. तो हमारा सिंबॉलिक फॉर्म कैसे आएगा? YZX, ट्रायंगल YZX. This is how you write the symbolic form of congruence of two triangles. और अब अगर हमें मिल गया कि 2 triangles are congruent, तो every part of this triangle is in correspondence with every part of this triangle. यानी ये जो साइड है AB will be equal to YZ, BC will be equal to ZX, AC will be equal to YX, and the angles, angle A is equal to angle Y, angle B is equal to angle Z, and angle C is equal to angle X. ठीक है. और hence we learned CPCT. What was the CPCT? It was corresponding parts of congruent triangles. यानी अगर 2 triangles congruent है, every part of this triangle will be equal to every part of this triangle. So corresponding part of congruent triangles are always equal. यानी सर्वांगासम त्रिभुजों के संगत भाग हमेशा बराबर होते हैं. So these many things we learned in the previous class. Now today we are going to learn about congruence of triangles. As I told you, what did I say? I'd like to say it once again. 6 parts of one triangle should be equal to 6 parts of the other triangle. But our mathematicians made things easier for us. They said आपको 6 भाग इक्वल करने की जरूरत नहीं है, आप केवल कोई भी 3 पार्ट्स को आप इक्वल कर लीजिए. और इस बात के लिए उन्होंने क्रिएट किया क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स, यानी सर्वांग समता के लिए कसौटियां बनाया जिसके हेल्प से हम जो है 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं. तो चलिए अब हम सीखते हैं congruent, the criteria for congruence of 2 triangles. Children, the mathematicians gave us 5 criteria for the congruence of triangles. These are the 5 criteria. I'll explain it one by one. The first one is SAS congruence rule या congruence condition या सर्वांग असमता नियम. ठीक है, SAS, ASA, AAS, SSS and
RHS. Now the first one is SAS. Now here children, S stands for side, A stands for angle. ठीक है, S यानी side यानी कि बुझा, A यानी angle यानी कि कोण. Now the first one is, suppose we have two triangles. These are two triangles. We are going to prove that the two triangles are congruent by which congruence rule? SAS. ठीक है, side, angle, side. Two triangles are said to be congruent if two sides of one triangle, if two sides of this triangle and an included side, included angle. What do you mean by included angle? Included angle माने ये जो दोनों साइड है, दोनों साइड के जो बीच का जो एंगल है उसे हम कहते हैं इंक्लूडेड एंगल. हिंदी में कहेंगे अंतर्गत कोण. ठीक है, सो इफ टू साइड्स and an included angle of one triangle is equal to two sides and an included angle of another triangle, then we can say that the two triangles are congruent to each other. हिंदी में क्या कहेंगे? यदि एक त्रिभुज के दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण एक त्रिभुज के अगर दूसरे त्रिभुज के साथ अगर इक्वल है, बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि SAS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन या रूल से द टू ट्राइंगल्स आर congruent to each other. This is your first congruence rule. And the second one is ASA. ASA क्या कहता है? According to ASA, if two angles, suppose this angle is equal to this angle and this angle is equal to this angle. ठीक है, if two angles and an included side, यहां पर included side है यानी क्या होगा, दोनों angles के बीच का जो side है, this side should be equal to ये दोनों angles के बीच का side. ठीक है, so if two angles and the included side of one triangle is equal to the two angles and the included side of another triangle, then we can say that both the triangles are congruent by ASA congruence condition. A ये आपका S, ये आपका A, ये कोण, ये भुजा, ये कोण. ठीक है, तो अगर दोनों त्रिभुजों में दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा अगर दोनों त्रिभुजों में बराबर है तो हम कह सकते हैं कि ASA सर्वांगसमता नियम से दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है. फाइन स्टूडेंट्स, नाउ लुक एट द थर्ड वन. हमारा तीसरा क्या है? द थर्ड वन इज AAS. S is coming after A. ठीक है, if these are two triangles AAS, this angle is equal to this angle. Suppose this is equal to this, two angles and then the side after that. Suppose this is equal, this is equal. ठीक है, so if two angles and a side of one triangle is equal to two angles and a side of another triangle, then we can say that both the triangles are congruent by AAS congruence condition. Fine students, तो अगर इस त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा, दो कोण और एक भुजा दोनों अगर बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज AAS सर्वांगसम नियम से सर्वांगसम है. ठीक है, अब हम चौथा देखते हैं. दैट इज वेरी इजी वन, दैट इज SSS. SSS माने क्या होगा? भुजा, भुजा, भुजा. सो इफ दीज आर द टू ट्राइंगल्स, this side is equal to this side, this is equal to this and this is equal to this. So it's very clear children, if
the three sides of one triangle is equal to the three sides of another triangle, we can say that both the triangles are congruent by S congruence condition. तो यदि दोनों त्रिभुजों के भुजाएं, तीनों भुजाएं बराबर हो तो हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज S सर्वांगसमता से एक दूसरे के साथ सर्वांगसम है. ठीक है. And now we are coming to the last one, that is RHS. RHS is not right hand side, here it is something else. RHS जो है सिर्फ हमारे right triangle में ही possible है, क्योंकि R stands for right angle. Right angle. ठीक है. H stands for hypotenuse and S stands for side. जैसा बाकी सब में था, S stands for side, तो R stands for right angle, H stands for hypotenuse and S stands for side. तो यानी कि ये दोनों त्रिभुजों में क्या इक्वल होना चाहिए? सबसे पहले right triangle है तो right angle इक्वल होगा. Second is आपका hypotenuse. What is hypotenuse? The side which is opposite to the right angle. That means this side should be equal to this side. यानी उनके कर्ण जो है बराबर होने चाहिए. और उसके बाद कोई भी एक भुजा, this can be equal to this side. So what does that mean? If the right angle, the hypotenuse and any one side of one triangle is equal to a right angle, hypotenuse and any one side of another triangle, we can say that both the triangles are congruent by RHS congruence rule. I hope all the 5 congruence conditions are clear, children. Now, so we can say that to prove that the two triangles are congruent, what did we do? We just got three parts. 1, 2, 3. 1, 2, 3. You can see here. Here it was 2 sides and 1 angle, 2 angles and 1 side, 2 angles and again 1 side, 3 sides, 1 right angle, 1 hypotenuse and 1 side. So in all the triangles we had just 3 parts. Fine. Now we are going to prove that two triangles are congruent with the help of these 5 congruence conditions. So let's move on with the examples. Look at the first example, children. In figure, OA is equal to OB and OD is equal to OC. Show that triangle AOD is congruent triangle BOC and second part AD is parallel to BC. हिंदी में देखिए, आकृति में OA OB के बराबर है और OD OC के बराबर है. दर्शाइए कि त्रिभुज AOD और त्रिभुज BOC आपस में सर्वांगसम है और AD और BC आपस में समांतर है. Now children, this question here, पहले यहाँ पे देखिए क्या आपको प्रूफ करना है. प्रूफ करना है कि ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BOC. आपको प्रूफ करना है कि ये दो ट्राइंगल आपस में सर्वांगसम है. तो हमने क्या सीखा कि आपको कितने इक्वल पार्ट्स चाहिए? यू रिक्वायर 3 इक्वल पार्ट्स. ठीक है. जब भी आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, आपको क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में से ही आपको बहुत सारे इक्वल पार्ट्स मिल जाएंगे. कुछ क्वेश्चंस में डायरेक्टली आपको दे दिया जाएगा कि दिस इज इक्वल टू दिस, जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है. देखिए, OA इज इक्वल टू OB. बस आपको ये देखना है कि वो पार्ट्स दोनों अलग अलग ट्राइंगल्स के पार्ट्स है कि नहीं, बस वो देखना है. कुछ क्वेश्चंस में आपको डायरेक्टली दे दिए जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस में इनडायरेक्टली दे दिए जाएंगे कि सम पार्ट्स आर इक्वल, और कुछ आपको मिल जाएगा डायरेक्टली आपके डायग्राम से. ठीक है. नाउ पहला एग्जांपल में आपको डायरेक्टली दे दिया है कुछ. चलिए चेक कर लेते हैं. आर दीज द पार्ट्स ऑफ आवर ट्राइंगल्स? पहला देखिए, OA इज इक्वल टू OB. OA इज इक्वल टू OB. हाँ, दोनों अलग अलग ट्राइंगल्स के पार्ट्स हैं. ठीक है. और क्या दिया है? OD इज इक्वल टू OC. OD इस ट्राइंगल का है और ये इस ट्राइंगल का है. दैट मीन्स you've already got 2 parts. ओके. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये दोनों ट्राइंगल्स पूछा है, वही ट्राइंगल्स हम ले लेते हैं. We will write
in triangle AOD and triangle BOC. दोनों ट्राइंगल हमने ले लिया है. अब 3 पार्ट्स. क्या क्या पार्ट्स है देखिए. ये हमारा पहला पार्ट है, हम यहाँ पे पहला पार्ट डाल देंगे. ठीक है. अब इसका 3 हम लोग इक्वल पार्ट्स लिखने जा रहे हैं, इसलिए द फर्स्ट पार्ट, हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है? OA इज इक्वल टू OB. OA इज इक्वल टू OB. OA इज इक्वल टू OB. और हर इक्वल पार्ट के साथ आप ब्रैकेट में उसका रीजन लिखेंगे. इसका रीजन क्या है? रीजन इज गिवन, दिया है. ठीक है. सेकेंड पार्ट देखिए. सेकेंड, यहां पे ट्राइंगल में देखिए दिस 2 पार्ट्स आर इक्वल, है ना, यानी कि OD इज इक्वल टू OC. OD इज इक्वल टू OC. ये भी आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप लिख लीजिए. क्योंकि ये दोनों गिवन है, आप एक साथ भी गिवन लिख सकते हैं. नाउ द थर्ड वन. अब थर्ड वन तो आपको दिया नहीं है ना. अब आप डायग्राम में देखिए. कैन यू सी एनी पार्ट विच इज इक्वल टू ईच अदर? आप देख सकते हैं यहां पर both the lines are intersecting each other, and if they are intersecting each other, we are getting one pair of vertically opposite angles which are always equal. यानी हमें मिल गया this angle and this angle equal. तो हम इसे क्या लिखेंगे? और एक बात ख्याल रखिए बच्चों, OA OD, देखिए OA OD इस ट्राइंगल का है, तो सबको एक ही तरफ रखने की कोशिश कीजिए. Now this angle it will be AOD. Angle AOD is equal to angle. अब इस एंगल का नाम हम कैसे लिखेंगे? यूं ऐसा नहीं लिखना है, क्योंकि you know that these 2 parts are equal. तो that way you will take the angle also BOC. Angle BOC. ठीक है. And why are they equal? Because they are vertically opposite angles. ठीक है. हमारा तीनों इक्वल पार्ट्स आपको मिल चुका है. ठीक है. अब हम देखेंगे दोनों कॉन्ग्रुएंट. आपको पता है कि दोनों कॉन्ग्रुएंट है, बट बाय विच कॉन्ग्रुएंस रूल? उसके लिए आप क्या करेंगे? आप कोई भी एक ट्राइंगल देख लीजिए. आई एम गोइंग टू टेक दिस ट्राइंगल. ठीक है. अब देख सकते हैं ये एक भुजा है, दिस इज अ साइड, तो ये आपका साइड हो गया. उसके बाद आपका एंगल आपका इक्वल आ रहा है, साइड आ रहा है, फिर आपका एंगल इक्वल आ रहा है, राइट. उसके बाद आपका और एक साइड आपका इक्वल आ रहा है, यानी आपका कौन सा कॉन्ग्रुएंस नियम है? SAS. SAS. ठीक है. तो आप यहां लिखेंगे therefore by SAS rule. और थोड़ा लंबा से आप लिख सकते हैं by SAS congruence rule. What are we having? We have proved that triangle AOD is congruent triangle AOD congruent triangle BOC. ठीक है. अगर आप यहां पे नहीं लिखना चाहते हैं, आप डायरेक्टली यहां पर लिखिए therefore this is congruent और ब्रैकेट में लिख दीजिए by SAS rule. This is how you have to prove that the two triangles are congruent. ठीक है. हमारा पहला पार्ट हो चुका है, राइट. सेकेंड में पूछा है you have to prove that AD is parallel to BC. AD is parallel to BC, you have to prove, and this we have learnt in the previous class कि अगर आपको दो लाइंस को इक्वल पैरेलल प्रूव करना है तो आप क्या करेंगे? या तो आप करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल कीजिए, या फिर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को इक्वल कीजिए, या फिर को इंटीरियर एंगल्स को 180 डिग्री प्रूव कीजिए, है ना. तो यहाँ पर हमें जो मिलेगा वो हम करेंगे. हम देख सकते हैं कि हम आपको आपका थोड़ा सा माइंड यूज करना पड़ेगा कि कौन सा ले. You can see the 2 lines, okay, which means this is a transversal, right? Transversal है, देख सकते हैं ये दोनों एंगल है, तो हमें एक पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मिलेगा, है ना. तो उससे पहले क्या करेंगे? You have proved that the 2 triangles are congruent, which means all the sides and all the angles of this triangle is equal to all the sides and all the angles of this triangle, isn't it? तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं also. Now
एवरी एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर ऑफ दिस ट्राइंगल्स, इनका साइड भी दोनों का बराबर है, तो यहाँ पर हम लेंगे कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं। हम कैसे लिखेंगे यहाँ पर, OBC, एंगल OB, no we'll take from this side we'll take OAD, OAD is equal to angle OBC, OBC. Now why are they equal? They are equal by CPCT, क्योंकि corresponding parts of congruent triangles are equal. तो आपको केवल यहाँ पर ब्रैकेट में लिखना है by CPCT. हिंदी मीडियम के बच्चे भी आप सीधा लिख सकते हैं CPCT से, आप यूं लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये दोनों पार्ट्स इक्वल आ गया आपको, बट यू कैन सी दैट एक्चुअली ये कोई दो लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है और ये बन रहा है आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, बट दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दोनों एंगल्स इक्वल भी हैं और वे क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देयरफॉर वी कैन से दैट बोथ द लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। देयरफॉर what is it, AD is parallel to BC and that's your answer. Now इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा आइडिया मिल चुका होगा कि कैसे दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। लुक एट द सेकेंड एग्जाम्पल चिल्ड्रन। AB is a line segment and line L is its perpendicular bisector. If a point P lies on L, show that P is equidistant from A and B. हिंदी में देखिए, AB एक रेखाखंड है और रेखा L इसका लंब समद्विभाजक है। यदि L पर स्थित P कोई बिंदु है तो दर्शाइए कि P बिंदुओं A और B से समदूरस्थ है। Children, now this is a little different model. What is given in your question? Line L is the perpendicular bisector. So now you know why I taught you certain important terms in the previous class. This perpendicular bisector came here, right? What is the meaning of perpendicular bisector? A line segment that is perpendicular to a side as well as it bisects the side. यानी लंब समद्विभाजक, है ना। तो एक सिंगल लाइन से सिर्फ एक लाइन कहते हुए उन्होंने आपको दो इक्वल पार्ट्स दे दिया। जैसे कि बाइसेक्टर है यानी AC इज इक्वल टू आपका BC हो गया, है ना। और क्या बोल रहे हैं, परपेंडिकुलर है, तो यानी कि ये लाइन इसके साथ 90 डिग्री बना रहा है, तो ये 90 है तो ये भी आपका 90 है ना। तो दिस इज हाउ दे गिव समटाइम्स इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। इनडायरेक्टली उन लोगों ने आपको दे दिया कि दो पार्ट इक्वल है, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, यू हैव टू प्रूव दैट P is equidistant from A and B. What is the meaning of equidistant? ये जो पॉइंट P है A से और B से समदूरस्थ है, यानी कि आपको क्या प्रूव करना है, यू हैव टू प्रूव दैट PA is equal to PB. This is what you have to prove. ठीक है, यहां पर आप उन लोगों ने डायरेक्टली नहीं पूछा है कि प्रूव दैट द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। क्वेश्चन ये है, यू हैव टू प्रूव one साइड ऑफ बोथ द ट्राइंगल्स, which means first you have to prove that the two triangles are congruent, then automatically all the corresponding parts will be equal to each other. ठीक है, तो सबसे पहले हम कौन से ट्राइंगल्स लेंगे, we will take triangle, कैसे भी ले लीजिए, बस लेते समय symbolic form should be correct। या तो आप यूं ले लीजिए, आप यूं ले लीजिए, मैं लेने जा रही हूं ट्राइंगल PAC, ठीक है। वी विल राइट इन ट्राइंगल PAC एंड ट्राइंगल PBC। दो ट्राइंगल मैंने ले लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वी हैव टू फाइंड 3 इक्वल पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट ओवर हियर, ठीक है,
इससे हमें यहाँ पे बहुत कुछ मिल चुका है ना? तो हम लिखेंगे AC इज इक्वल टू BC, AC इज इक्वल टू BC, और उसका रीजन भी लिखना होगा। वे दोनों क्यों इक्वल है? क्योंकि L इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है ना? तो आप क्या लिखेंगे? आप सीधा लिखे सिंस L इज द बाइसेक्टर, ठीक है? ओके, सेकेंड कंडीशन भी हमारा यहाँ पे आ चुका है। दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, है ना? तो एंगल PCB, AC हम पहले ले रहे हैं तो हम ये ट्राइंगल के पहले लेंगे PCA, एंगल PCA इज इक्वल टू एंगल PCB, दोनों क्या है आपका? 90 डिग्री। और इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि सिंस L is perpendicular to AB, ठीक है? तो एक सिंगल स्टेटमेंट से हमें आंसर मिल गया, 2 इक्वल पार्ट्स मिल चुका है। नाउ द थर्ड वन, तीसरा पार्ट डायग्राम में देखिए, आप देख सकते हैं कि ये जो आपका साइड है PC, राइट? ये इस ट्राइंगल के लिए एक भुजा है ना? और ये भुजा जो है इस ट्राइंगल के लिए भी एक भुजा है, यानी व्हाट डज दैट मीन? द साइड PC इज कॉमन टू बोथ द ट्राइंगल्स, दोनों त्रिभुजों के लिए PC उभयनिष्ठ है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? वी विल राइट PC इज इक्वल टू PC या PC इज इक्वल टू CP। व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज कॉमन, यानी उभयनिष्ठ, ठीक है? हमें 3 इक्वल पार्ट्स मिल चुका है और अब हम क्या करेंगे? वी विल सी बाय विच कॉन्ग्रुएंस रूल। तो हम कोई भी एक ट्राइंगल लेंगे। इस ट्राइंगल में देखिए, अब ये एक साइड हो गया, है ना? ये एक एंगल हो गया। अब आप सोचेंगे 90 डिग्री आ गया तो शायद RHS होगा। नहीं, क्योंकि यहाँ पर हाइपोटेन्यूज हमारा इक्वल अभी फिलहाल हुआ नहीं है, तो हम जो है RHS नहीं यूज कर सकते। आप इसे एक सिंपल एंगल के तौर पर लीजिए। ये आपका एक साइड हो गया, ये आपका एक एंगल हो गया, और तीसरा साइड कौन सा है आपका इक्वल? PC, यानी दिस, है ना? तो सिर्फ एक ट्राइंगल को अगर देखेंगे, ये आपका साइड, ये आपका एंगल और ये आपका साइड, दैट मीन्स कौन सा सर्वांग समनियम? SAS, ठीक है? तो व्हाट इज इट? we'll write therefore by SAS congruence rule हमें क्या मिला? triangle PAC is congruent triangle PBC। ये दोनों ट्राइंगल आपस में congruent हो चुका है, राइट? उसके बाद क्या होगा? all the corresponding parts are equal to each other। तो क्या हम अब लिख सकते हैं कि PA is equal to PB? Yes, so we'll write which implies PA is equal to PB, है ना? और ये क्यों इक्वल है? by CPCT, that is by CPCT। रीजन भी हो चुका है। अब अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो हम क्या लिख सकते हैं? that P is equidistant from A and B, implies P is equidistant from A and B. Right, children? So children, now you got some idea of how to find that two triangles are congruent, isn't it, children? If you are clear with the concept, then you can start with your exercise, the first exercise, and in the next class when I start with the exercise, you can tally and see whether what you have done is right or wrong. So children, we will meet in the next class with a few more examples, and we'll start with the exercise also. Till then, keep learning and also enjoy your holidays.